مولا علی رحمتullah علیہ کا فرمان ہے، جب تم کسی سے محبت کرو تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہارے مقدر میں ہے یا نہیں، اسے اتنا محبت کرو کہ خدا تمہارے تقدیر میں لکھ دے۔ مولا علی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہو۔ کبھی کبھی جو مانگنا ہوتا ہے وہ لفظوں میں نہیں ڈھلتا، بس دل ٹوٹے الفاظ کے بغیر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ خاموش دعائیں جو صرف آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں چھپی ہوتی ہیں، وہ رب کے قریب ترین ہوتی ہیں، کیونکہ رب آوازوں سے زیادہ حالات کو دیکھتا ہے، اور خاموش دعائیں عرش ہلا دیتی ہیں۔ بس تم دل سے دعا مانگتے رہو۔ ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے تو دعا کی تھی پھر بھی وہ دعا نہ ملا، میں تو بہت چاہتا تھا پھر بھی چھن گیا۔ گویا یہ جان لو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ تمہارے حق میں ہوتے ہیں۔ تمہیں ابھی سمجھ نہ آئے لیکن رب دیکھ رہا ہے، تمہارے کل کو، تمہارے دل کو اور تمہاری تقدیر کو۔ کبھی کچھ لیتا ہے تمہیں بہتر دینے کے لیے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، قسمت بس ایسی ہی ہے، اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ دل تھام کر بس ایک بار دل سے دعا مانگ کر دیکھو، کیونکہ دعا وہ طاقت ہے جس سے رب تقدیر لکھ سکتا ہے اور مٹا بھی سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، مانگتے ہیں، مگر لگتا ہے جیسے آسمان خاموش ہے۔ لیکن جان لو کہ رب خاموش ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری دعاؤں کو جمع کرتا ہے، تمہارے صبر کو تراشتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ وہی دیتا ہے جو بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دل بوجھ سے بھر گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ الفاظ ختم ہو گئے ہیں، آنکھوں میں صرف نمی رہ گئی ہے۔ تب ایک سجدہ کر کے دیکھو۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں دل بکھرتا نہیں، سنبھلتا ہے، جہاں آنسو جایا نہیں جاتے، عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا والے تمہیں تھکا دیتے ہیں، لیکن سجدہ تمہیں سکون دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تم زمین پر ہو اور تمہارا دل رب کے سامنے، رب کے قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں چھپی راحت وہ راز ہے جو صرف وہی جانتا ہے جس نے سجدے میں رب کو پکارا ہو۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کی کائنات کا ایک بھی پتا ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جب اللہ تمہاری ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو پھر اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ جس کی نیت صاف ہو اس کے لیے راستے خود ہی بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں۔ جس رفتار سے آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لوگوں سے اس رفتار میں بات کر کے دیکھیں، کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ مولا علی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں، جب انسان ایماندار ہو جاتا ہے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو خود پردہ رکھتا ہے۔ نماز کے لیے وقت نکال لو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال لے گا، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے اللہ کا نظام اور اس کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ سکون اور کامیابی کے دو ہی طریقے ہیں، یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو، یا پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور کبھی بھی کسی غریب کی بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر
बनने में देर नहीं लगती है। परेशानियों का सबसे खूबसूरत और पुरसुकून हल नमाज है। जब दिल थक जाए और रास्ते बंद नज़र आ रहे हों और चारों तरफ अंधेरा छाया हो, तो सजदा ही वह जगह है जहाँ सुकून मिलता है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब इंसान हज़ार गुनाहों के बाद भी उसकी तरफ रुजू करता है। टूटी फूटी ही सही, लेकिन उससे माफ़ी मांगता है। कच्ची सी सही, लेकिन उससे तौबा की दरख्वास्त करता है। यह टूटी फूटी और कच्ची सी फरियाद भी अल्लाह को बहुत प्यारी लगती है और वह माफ़ कर देता है। या अल्लाह, हमें इतना अता कर जितनी तेरी शान है, और इतने गुनाह मुआफ़ फरमा जितने तू रहमान है, और इतनी आजमाइशों से दूर रख जितना तू मेहरबान है, और इतना रिज़्क़ अता कर जितना तू रज़्ज़ाक़ है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 तरीक़ों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। नंबर 1 खामोश रहना, नंबर 2 सब्र करना, और नंबर 3 शुक्र करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, कुदरत का कानून है कि दुनिया में तुम किसी को बेचैन करोगे तो तुम खुद भी बेचैन की ज़िंदगी गुजारोगे। माँ बाप के लिए पैसे खर्च करना कोई बर्बादी नहीं है। इसे खुशनसीबी कहते हैं, जो हर बच्चे के नसीब में नहीं होता। जब दिल उदास हो और कोई समझने वाला न मिले तो तुम बस रब से बात करो। वह तुम्हारे लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है, वह तुम्हारी खामोशी सुन लेता है। तुम्हारी आँखों से गिरता एक आंसू अर्श तक पहुँच जाता है। दुनिया वाले थक जाते हैं सुनकर, लेकिन रब तब तक सुनता है जब तक तुम टूट नहीं जाते, और फिर वह तुम्हें अता करने में देर नहीं करता। तुम्हारे दिल का हाल, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी दुआ जो लबों तक आकर वापस लौट गई थी, रब सब जानता है। वह तुम्हारे आंसू भी देखता है जो तुम दूसरों से छुपा कर बहाते हो, और वह दर्द भी समझता है जो तुम लफ्ज़ों में बयान नहीं करते। कभी मत सोचना कि तुम तन्हा हो। तुम्हारा रब तुम्हारे साथ हर लम्हा है, और वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। बस तुम सब्र करो और दुआ करते रहो, और यकीन रखो कि रब सब जानता है, और वह तुम्हारे हक़ में बेहतरीन वक्त पर बेहतर अता करेगा। मोहब्बत अगर किसी चेहरे के लिए हो तो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर किसी रिश्ते के लिए हो तो हालात के साथ बदल जाती है। लेकिन अगर मोहब्बत अल्लाह के लिए हो तो वह मिसाल हो जाती है। ऐसी मोहब्बत लालच नहीं रखती और ना ही शर्त और शिकायत रखती है। ऐसी मोहब्बत में सुकून होता है, इज़्ज़त होती है और वफ़ा होता है, और सबसे बढ़कर कि रब की रज़ा होती है। जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो सिर्फ़ अल्लाह से करो, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत इबादत बन जाती है, और जब कोई तुमसे रब के लिए मोहब्बत करे तो वह मोहब्बत जन्नत के काबिल बन जाती है। मोहब्बत करना आसान नहीं है, लेकिन मोहब्बत निभाना यह सिर्फ़ वही लोग जानते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं। वह लोग जो हर बार माफ़ कर देते हैं और ख़ामोश हो जाते हैं, दुआ करते हैं और अपना हक़ भी कुर्बान कर देते हैं सिर्फ़ रिश्ते बचाने के लिए। यही लोग रब के ख़ास होते हैं, क्योंकि इनकी मोहब्बत में खुदगर्जी नहीं होती, लालच नहीं होता और वफ़ा होती है। दुनिया शोर से भरी है, दिल उलझता है, ख़यालात थका देते हैं, रिश्ते आज़माते हैं और ज़िंदगी कभी कभी भारी लगती है। लेकिन एक लम्हा ऐसा होता है जहाँ सब कुछ ठहर जाता है, और वह लम्हा सजदा है। सजदे वह होते हैं जहाँ सुकून बसता है, जहाँ न कोई झूठ बोलता है। दिल और रब के दरमियान खामोशी का रिश्ता होता है। जब तुम झुकते हो तो रब तुम्हें थाम लेता है। सजदे दुआओं का दरवाज़ा और सुकून की आखिरी पनाह होते हैं। कभी दिल में बेरंगी सी छा जाती है, नमाज में दिल नहीं लगता और कुरान खोलने को दिल नहीं चाहता। दुआ मांगते हुए अजीब सी खामोशी होती है।
तुम सोचते हो कि क्या तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो गया है? क्या मैं रब से दूर हो चुका हूँ? तो सुनो, ईमान कभी मुकम्मल ख़त्म नहीं होता, बस वह गिर जाता है। उसे उठाया जा सकता है सजदे से। रब ने सजदे को तुम्हारे टूटे दिल का सहारा बनाया है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा झुकना, तुम्हारा टूट कर आना, यही तुम्हारा ईमान है। सजदे में गिर जाओ और देखो कैसे रब तुम्हारे ईमान को दोबारा ज़िंदा करता है। ऐ जल्द राजी होने वाले रब, इस बंदे की मदद फरमा जिसके पास दुआ के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह तो छोटी सी चींटियों का हक भी जाया नहीं जाने देता है। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे टूटे दिल के साथ कैसे सब्र को जाया करेगा। दुआओं का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जब कबूल कर ली जाती है फिर अपना रंग दिखाती है, और फिर मोज़ेज़े होते हैं, फिर तकदीर बदल दी जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फ़रमान है, अल्लाह के इश्क़ में एक मकाम वह भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ़ सोचता है और अल्लाह अता कर देता है। और जल्द ही तुम्हारी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी और तुम्हारी दुआएं भी कबूल कर ली जाएंगी। बस तुम सब्र का दामन मत छोड़ना। अल्लाह पर यकीन करने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि वह जानते हैं बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डर कर अपना यकीन हार कर बैठ जाते हो तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। सब्र रखो और दुआ करना न ही छोड़ो, हो सकता है कबूलियत का वक्त अब करीब है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। बहुत जल्द तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। तुम्हें वह मिलने वाला है जिसके मिलने की तड़प ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली थी। बहुत जल्द तुम खुश होने वाले हो। या अल्लाह, आज जितने भी हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं उन सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन।